Good morning everyone and welcome to the class. We are going to start the revision of another chapter, that is election and representation. And in this chapter, first of all, we will see the importance of election in a democracy. Why we cannot think of democracy without holding elections. Why elections are important, or we can say essential for democracy. In this regard, we will see that democracy in today's time, in modern time, democracy is not direct. It is not possible for all citizens to take a direct part in the decision making process, because democracy is about the government of the people, है ना? But it is not practically possible कि all the citizens will take part in the decision making process. So what is required? There is a requirement of representatives. कि people will elect, choose in any manner. People will be rule. People will rule through their representatives. अब पीपल जो हैं वो रूल करेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू. तो ये कैसे रिप्रेजेंटेटिव आएंगे? These representatives will be elected, है ना? Other than election, there is no other way to choose these representatives. That is the best way through which we can choose our representative. So elections are very important in a democracy, because we cannot rule directly. We can rule, people can rule only through their representatives, and these representatives are elected by democracy. So democracy, these representatives are elected by election. So in democracy and elections are very much similar. We cannot think of democracy without election. Whenever we think of democracy, our mind invariably turns to the election. Okay, elections से ही democracy possible है. And actually we can say that elections have today become the most visible symbol of democratic process. अब अगर इलेक्शन हो रहे हैं किसी भी कंट्री में, तो हम कहेंगे कि वहाँ पर डेमोक्रेसी है. दिस इज द मोस्ट विजिबल सिंबल, जिससे हम पता चलता है कि यहाँ डेमोक्रेसी है या नहीं है. एंड दिस इज द कॉमन in all the countries in today's time. All the countries are following this indirect democracy. Indirect democracy is a representative democracy, when people are not ruling directly. Direct democracy is that type of democracy in which people take part directly in the decision making process. The system which was prevailing in ancient time, if we see the ancient city states of Greece, like in Athens and Sparta, we find that system was there, in which people ruled directly. All the citizens of these city states took part in the decision making process. But nowadays it is not possible. It is not possible that all the people take part in the decision making process, because the population is so large, the territory of the countries are so big, that it is not possible कि people will rule directly. And at present अगर हम कहीं पर डायरेक्ट रूल देखते हैं, तो वो हमें नज़र आता है लोकल गवर्नमेंट्स में, जो हमारी जैसे ग्राम सभाज होते हैं. इन एट द पंचायत लेवल देयर इज ग्राम सभा, जो विलेज के लेवल पे जो लोकल गवर्नमेंट होती है, उसमें ग्राम सभा होती है, जिसमें कि ग्राम सभा के मेंबर कौन होते हैं? ऑल द एडल्ट members of the village are all the adult citizens of the village are the members of Gram Sabha. Okay, but this kind of ये जो ग्राम सभा होती है, वो उसमें उसके जो members होते हैं, they take direct participation in decision making, but that is not possible at the state level or central level.
जब हम लैक्स एंड करोड्स ऑफ पीपल के बारे में बात होती है, व्हेन लैक्स एंड करोड्स ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व्ड, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि दे टेक पार्ट डायरेक्टली in the decision making process. And that is why whenever we talk of democracy or we talk of rule by the people, usually it means rule by the representatives of the people, because it is not practically possible for the people to rule directly. People rule through their representatives. And when we are ruling through our representative, we have to choose our representative, isn't it? And we choose these representative, and these representatives are actively involved in governing and administrating the country. जो हमारे representatives होते हैं वही govern करते हैं country को हमारे behalf में, है ना? तो the method followed to choose these representatives is referred to as an election. How we choose our representatives? We choose our representatives through election. Elections के through हम अपने representative को choose करते हैं. तो the role the citizens play in decision making process or in the process of governance is very limited. People take part only in the election. They are not actively involved in the making of policies or taking the decisions. They are only there to choose their representatives, and then these representatives govern on behalf of the people. So this type of arrangement is adopted in almost all the countries, all the democratic countries, where all major decisions are taken by the representatives of the people who are elected by the people. So election becomes the most important activity in a democracy, and we हम क्या शुरू कर देते हैं, इलेक्शन और डेमोक्रेसी को हम सिनोनिमस मान लेते हैं कि ये दोनों एक के बिना दूसरा हो ही नहीं सकता है. डेमोक्रेसी कैन नॉट बी देयर विदाउट इलेक्शन. ओके, तो इन दिस वे वी कैन सी कि अगर डेमोक्रेसी है तो वहाँ इलेक्शंस होने ही हैं. बिना इलेक्शन के डेमोक्रेसी नहीं हो सकती है. नाउ वी सी कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि हर इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक हो. डेमोक्रेसी कैन नॉट बी देयर इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्शन. ये तो ठीक है कि डेमोक्रेसी इलेक्शन के बिना नहीं हो सकती है, बट हर इलेक्शन डेमोक्रेटिक हो ये जरूरी नहीं है. कई बार ऐसे हम कंट्रीज देखते हैं, ऐसे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज होते हैं जहाँ पर कि इलेक्शंस होते हैं. द कंट्री इज नॉन डेमोक्रेटिक बट इलेक्शंस आर देयर, because though the countries are non-democratic, but the rulers of these non-democratic or undemocratic countries, they want to present themselves as democratic. वो ये दिखाना चाहते हैं कि उनका जो रूल है वो डेमोक्रेटिक है. दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल. उनको लोगों का मैंडेट मिला हुआ है. पीपल हैज गिव देम देयर मैंडेट टू रूल ओवर देम. ये दिखाने के लिए वो क्या करते हैं, वो इलेक्शंस करते हैं. और वहाँ पर जो इलेक्शंस होते हैं वो इलेक्शन जो होते हैं वो इस तरह से किया जाता है कि वो पूरी कंप्लीटली दैट इज अनडेमोक्रेटिक टाइप ऑफ इलेक्शन. तो इलेक्शंस से सिर्फ नहीं हो जाता है कि अगर इलेक्शन हो गया तो वहाँ पर डेमोक्रेसी आएगी. इस तरह के कई सारे कंट्रीज हैं. लाइक चाइना को ही अगर हम देखें तो चाइना में क्या है, इन चाइना देयर इज सिंगल पार्टी सिस्टम. इन अ सिंगल पार्टी सिस्टम देयर इज नो मीनिंग ऑफ इलेक्शन, बिकॉज इलेक्शन में जब हमारे पास ऑप्शंस ही नहीं है, हमारे पास डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ही अवेलेबल नहीं है, ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज देयर, देन व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ इलेक्शन? If we can't choose our representatives from different parties which have different ideologies, then what is the utility of such election?
तो इस तरह के बहुत सारे कंट्रीज हैं। जैसे जब पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ ने कूप करके अपने पावर को यूसर्व किया था, तो एट दैट टाइम ऑल्सो ही कंडक्टेड इलेक्शन, लेकिन वो जो इलेक्शंस हुए वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं थे। तो इस तरह के इलेक्शन जब भी होते हैं अनडेमोक्रेटिक कंट्री में, तो वो सिर्फ ये दिखाने के लिए किया जाता है इलेक्शन कि हम डेमोक्रेटिक हैं, हमें जनता ने आदेश दिया है, द पीपल हैज गिव अस मैंडेट टू रूल ओवर देमसेल्फ। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, हम यही इसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि इलेक्शन के बिना डेमोक्रेसी नहीं हो सकती है, बट हर इलेक्शन डेमोक्रेटिक हो ये जरूरी नहीं है। इलेक्शंस नाम के भी होते हैं, सिर्फ दिखावे के होते हैं, और कुछ ऐसे क्राइटेरिया हैं जिससे कि हमें ये हम समझ सकते हैं कि इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो क्राइटेरिया है, दीज आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये चीज़ें होती हैं। जैसे अगर इफ वी सी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, व्हाट वी फाइंड कि in our country, in the constitution of our country, we are given universal adult suffrage. All the people, adult people or adult citizens of the country are given right to vote by the constitution. So this is very important. If we want कि election democratic हो, तो उसके लिए जो first requirement है वो यही है कि who is eligible to vote. All the citizens above the age of 18 are eligible to vote. This is the first criteria. अगर हम सबको right to vote नहीं दे रहे हैं, there is discrimination on any basis, then it is not a democratic election. तो it is given in our constitution. तो इसके लिए कहाँ पर अरेंजमेंट किया जाता है? इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अरेंजमेंट किया जाता है कि इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक होगा या नहीं होगा। Now the second question is who is eligible to contest. अगर हम राइट टू वोट तो दे दिया लोगों को, बट राइट टू कंटेस्ट नहीं दिया, उसमें हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, then also the election will not be democratic. So the second requirement is कि everyone, there must be some criteria like the criteria of age, criteria of citizenship, किसी तरह का क्रिमिनल केस न चलना, ये क्राइटेरिया हो सकते हैं, बट किसी तरह का जैसे जो जेंडर के बेसिस पे, देन कास्ट के बेसिस पे या इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे इस पे किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एवरीवन शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन. This is the second requirement and it is also fulfilled by our constitution. Now the third is who is to supervise election. कौन election को supervise कर रहा है? That is also important. If suppose the elections elections are conducted in a country by the government itself, then what will be the outcome? The outcome will be always in favor of government. अगर government को ही conduct करना है, government means government is formed by a ruling party, जो भी formed by ruling party, the party which gets majority in the Lok Sabha, that party forms the government. और अगर इसी गवर्नमेंट को इलेक्शन कंडक्ट करने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया जाता है, तो क्या होगा? द गवर्नमेंट इज always belonging to a particular political party, और जब भी अगर उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई तो वो फिर इस तरह से काम करेगा कि जो अपनी पार्टी को फायदे के हिसाब से काम करेगा, और तो वो इलेक्शन कभी भी फ्री एंड फेयर नहीं होगा. तो द थर्ड रिक्वायरमेंट इज कि इलेक्शंस कौन करवाता है. लाइक इन आवर कंट्री देयर इज प्रोविजन फॉर एन इलेक्शन कमीशन जो कि इंडिपेंडेंट है, इम्पार्शियली अपने काम को करता है. तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द फ्री एंड फेयर इलेक्शन. नाउ द फोर्थ थिंग, हाउ डू द वोटर्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. व्हाट इज द मेथड ऑफ चूजिंग द रिप्रेजेंटेटिव. हमने क्या तरीका अपनाया है रिप्रेजेंटेटिव्स को
चूज करने के लिए. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स फॉर democratic election. And the next question, how are the voters votes to be counted and representatives elected? कैसे votes की counting कैसे होनी है और representatives कैसे elect होना है. तो in this chapter we are going to discuss all these things कि हमारी कंट्री में किस तरह से इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाया गया है, क्योंकि इलेक्शंस आर crucial, the most crucial process of a democratic government. डेमोक्रेसी तभी रियल हो सकती है जबकि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हो. और इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स दे वर वेरी मच अवेयर of the importance of this election, and that is why they have made provision for all these things. So we will discuss all these in this chapter, and first of all we will discuss election system in India. Election system in India. So we see that different methods of election is there. Like there is a system of conducting election. There are authorities and rulers about do's and don'ts कि क्या करना है इलेक्शन के दौरान, क्या नहीं करना है. इलेक्शन सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें हमारे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि कैसे हमारे इलेक्शन का कौन सा सिस्टम होगा. ठीक है, व्हाट सिस्टम वी आर गोइंग टू अडॉप्ट in the independent India. All these things are written in the constitution. So there are different methods of election. Actually what happens कि we think that there is only one method of election which we are seeing in our country because we are so much so used to this system of election. But actually what we find कि there are different methods of election, and all the constitution of different countries, they adopt different methods of election according to the needs of their own country. So we have also adopted the method of election according to the need of our own country, according to the requirement of our own country. And in this regard, the first system of election about which we are going to discuss is first past the post system. This is called FPTP, first past the post system. In this election process, what happens, we will discuss how this system of election is there. But first of all, we will discuss about the result of the Lok Sabha election of 1984. In 1984, there was election in our country, and in this election, what we find that the Congress party came to power after winning 415 seats of the 543 लोक सभा सीट्स. ठीक है, हमारे यहाँ लोक सभा के टोटल सीट्स कितने हैं? एट प्रेजेंट इट इज 543. And we are talking about the election of 1984. 1984 में जो इलेक्शन हुआ उसमें कांग्रेस को इस 543 सीट्स में से 415 सीट्स जो हैं वो कांग्रेस को मिलते हैं. दिस 415 of 543 लोकसभा सीट्स, दिस इज मोर देन 80% ऑफ द सीट्स. अगर हम 543 का 80% देखते हैं तो ये 415 जो है वो 80% से भी ज़्यादा है. तो कांग्रेस को think it listen it carefully because there is some ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं इससे रिलेटेड
ही चीज़ें हैं आगे, तो इट शुड बी क्लियर। ओके, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 1984 का इलेक्शन हो रहा है और इस इलेक्शन में कांग्रेस को टोटल 543 सीट्स में से 418 सीट्स मिल रहे हैं। ठीक है, और टोटल है 543 और कांग्रेस को मिले हैं 450, जो कि टोटल का अराउंड 80% है, 80% से ज्यादा ही है। तो इस तरह का जो विक्ट्री था वो पहले किसी भी पार्टी को इतनी ज्यादा, खुद कांग्रेस पार्टी इसके पहले कई बार रूल में रही थी, बट इतना ज्यादा परसेंटेज ऑफ सीट, मोर देन 80% ऑफ सीट्स कभी भी नहीं मिला था कांग्रेस को। इस इलेक्शन में कांग्रेस को 80% से भी ज्यादा सीट मिलते हैं, और ये हम कहेंगे कि अगर हम इसको फ्रैक्शन में देखें तो ये जो 80% से ज्यादा, एक्चुअली दैट वाज 4/5 ऑफ द टोटल सीट। जो टोटल सीट था उसका ये 4/5 जो है वो कांग्रेस को मिलता है। ठीक है, बट अगर हम इसी को अभी हम वी आर सीइंग ओनली द नंबर ऑफ सीट्स, हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, हम नंबर ऑफ सीट्स देख रहे हैं कि लोकसभा में 543 सीट्स है और कांग्रेस को 415 सीट्स मिलते हैं, जो कि 4/5 ऑफ द टोटल सीट है, विच इज मोर देन 80%। तो क्या अब नाउ द क्वेश्चन इज कि कांग्रेस को इतनी जो ज्यादा सीट मिली है, तो क्या कांग्रेस को जो इंडिया के वोटर्स हैं उन्होंने भी इसी तरह से वोट किया? क्या हर 5 में से 4 लोगों ने 4 out of 5 Indians voted for Congress? क्या ये सही है? नो, दिस इज नॉट ट्रू। एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि 5 वोटर्स में से 4 वोटर ने कांग्रेस को वोट दिया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अगर हम सीट्स को देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि हर 5 सीट में से 4 सीट कांग्रेस को मिल रही है। तो ये इनकंसिस्टेंसी देखने को मिलती है कि वोटर्स ने इतने वोट नहीं दिए थे लेकिन सीट उनको इतनी मिल गई। अगर हम वोटर्स को देखें कि कितने वोटर्स ने कांग्रेस को वोट दिया, तो हम देखेंगे कि कांग्रेस गॉट ओनली 48% ऑफ द वोट्स। ओके, कांग्रेस को कितने वोट मिले? वोट्स का 48% मिल रहा है। सीट्स का 80%, मोर देन 80% ऑफ द सीट्स। More than 80% of the seats Congress is getting in the election of 1984. But if we consider the percentage of vote, then we see that Congress is able to get only 48% of the votes. So you need to understand this inconsistency. ये जो misproportion है, सीट्स इतने मिल रहे हैं, वोट्स बहुत कम मिल रहे हैं। ऐसा हुआ नहीं, ऐसा होता है। इट हैपेंस इन ऑल द इलेक्शंस कि केवल 48% लोग ने ही वोट दिया इन फेवर ऑफ कांग्रेस एंड पार्टी स्टिल मैनेज टू विन मोर देन 80% ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा। सो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज देयर इन आवर सिस्टम। हमारा जो इलेक्शन सिस्टम है वो उसमें ये ऐसा कंडीशन प्रिवेल करता है। अगर दूसरी तरफ इसी इलेक्शन का एक दूसरी पार्टी जो बीजेपी है, उसमें हम देखें तो बीजेपी को कितने वोट्स मिलते हैं? 7.4% ऑफ द वोट्स, जो वोटर्स ने वोट किया उसका 7.4% मिला बीजेपी को।
लेकिन उसने सीट कितनी जीती? बीजेपी वॉज एबल टू विन लेस देन 1% सीट। 1% से भी कम सीट बीजेपी को मिलती है। दिस इज अबाउट कांग्रेस। Okay, this is about Congress and this is about BJP. BJP is getting 7.4% of the votes and it is able to win less than 1% of the seats. This is about BJP. तो ये जो इनकंसिस्टेंसी हमें दिख रही है वो इसलिए दिख रही है क्योंकि हमने ऐसे ही सिस्टम को अडॉप्ट किया। वी हैव अडॉप्टेड अ सिस्टम लाइक दिस ओनली। we have followed the system of FPTP, first past the post system. And under this system what we do, first of all, the whole country is divided into 543 constituencies, because there are 543 members in the Lok Sabha, and from for each Lok Sabha member, for the election of each Lok Sabha member, there must be a constituency. हर कंस्टिट्यूएंसी से एक एक जो मेंबर है वो इलेक्ट होंगे। तो पूरी कंट्री को सबसे पहले हमने क्या किया कि 543 कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया। देन द नेक्स्ट स्टेप वाज कि ईच कंस्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव। हर कंस्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होके आएगा। ठीक है, 543 सीट्स हैं लोकसभा में, 543 कंस्टिट्यूएंसीज हैं कंट्री में। हर कंस्टिट्यूएंसी से एक जो मेंबर है, एक जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इलेक्ट हो रहा है। ठीक है, एंड हु इज गेटिंग इलेक्टेड फ्रॉम ईच कंस्टिट्यूएंसी? कौन इलेक्ट होगा हर कंस्टिट्यूएंसी से? द कैंडिडेट हु सिक्योर्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन दैट कंस्टिट्यूएंसी। उस कंस्टिट्यूएंसी में जिसको भी सबसे ज्यादा वोट मिलेगा, he will be the winner. This is the system we have adopted. ठीक है, हर कंस्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होगा और जिस रिप्रेजेंटेटिव को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही इलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस सिस्टम में बस यही देखा जाता है कि सबसे ज्यादा वोट किसको मिले। जो बहुत सारे कैंडिडेट खड़े होते हैं इलेक्शन में, है ना, कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन, इसमें जिसको भी सबसे ज्यादा वोट मिलता है उसको ये मिल जाता है, वो जीत जाता है। देयर इज नो नीड टू सिक्योर अ मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स। ये नहीं है कि जितने भी लोग वोट डाल रहे हैं उसका 50% आपको मिलेगा तभी आप जीत सकते हैं, है ना, ये नहीं रखा गया है। बस ये क्राइटेरिया है कि जिसको भी सबसे ज्यादा वोट मिलता है वो जीत जाएगा। दिस इज नॉट द क्राइटेरिया कि द विनर मस्ट गेट एटलीस्ट 50% ऑफ द वोट्स। हो सकता है उसको 20% ऑफ द वोट्स ही मिले, स्टिल ही विल बी द विनर। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हो सकते हैं और जो लोग हैं उन्होंने सभी कैंडिडेट्स को वोट दिया है, तो किसी को 15% मिला, किसी को 18% मिला, किसी को 19% मिला और किसी को 20% मिला। जिसको 20% मिला वही इलेक्ट हो गया। तो दिस इज द सिस्टम, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। कौन सबसे पहले इस जो रेस हो रही है, इट इज पास द पोस्ट, क्या हुआ, एथलेटिक्स में जो रेस हो रही है उसके लिए ये टर्म्स आते हैं कि कौन सबसे पहले पोस्ट को पास करता है, कितने टाइम में पास करता है। दैट इज नॉट द क्राइटेरिया, सबसे पहले कौन पास करता है। कुछ ऐसे भी रेस होते हैं जिसमें टाइम लिमिट होता है कि इतने टाइम में अगर आप पास करेंगे तभी आप को विनर कहा जाएगा। लेकिन यहाँ जो सिस्टम हमने देख रहे हैं, हम जो अगर हम सिर्फ एथलेटिक्स के बारे में अभी कंसिडर कर रहे हैं, तो जो भी पोस्ट को सबसे पहले पास कर रहा है ही विल बी द विनर। नो क्राइटेरिया ऑफ टाइम कि कितने टाइम में उसको पास कर रहा है। तो सिमिलर वे जो भी कैंडिडेट सबसे ज्यादा वोट पा रहा है ही विल बी द विनर। ये नहीं देखा जाना है कि उसको कितना परसेंटेज ऑफ वोट्स मिल रहा है, दैट इज नॉट द क्राइटेरिया। तो दिस मेथड इज फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, और इसी मेथड को प्लूरैलिटी सिस्टम भी कहा जाता है।
और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसी सिस्टम को अडॉप्ट किया है. वी विल डिस्कस द problems which are associated with this system or the loopholes of this system and the reason why our constitution makers have adopted this system of election in our country. All these things will be discussed in the next class.